Good morning, everyone. Today we all are gathered here for the fifth session of Check-in for Cognition with Dean, that is CCD. It is a special program that is initiated by the DMA Media School, where every week 2 or 3 topics of contemporary issues are discussed by the Dean with the faculty members. This is with an objective to enhance the teaching learning process for the faculty members. In today's session, we will discuss on the topic of political parties in electoral processes. This is in the backdrop of the Assembly election 2023. Today we are going to be discussing about all the matters related to the political parties and electoral processes in India, wherein we will be talking about how the political parties are recognized, what are the criteria behind the recognition of the political parties, how are the manifestos decided, what are the rules for the campaigns, and all such issues. I would like to welcome Professor Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, Professor Dr. Sushmita Bala, Head DME Media School, and all the faculty members. I would now like to request Professor Dr. Amrish Saxena to please take the session further. Okay, so as this session is about political parties and what importance they have in the electoral process, because if we look at the election is the most sacrosanct thing, most important thing in the democratic setup of a country. So since we are a constitutional democracy and we have a system wherein elections will take place after every 5 years. And there is a separate law for that, which we call Representation of People's Act 1952. And everything is governed by that law, and whatever is written in the constitution about election and the whole process of the elected representatives. Since we are a representative democracy, which means that every constituency, whichever way the constituencies are defined, they will elect their representatives. Those representatives will provide us the governance. The elected representatives will form the government. They will frame the policies. They will provide governance. They will do all those things which are required for the well-being of the people in the country. Now, in this system, political parties are very, very important because going by the democracy, there are 2 types of democratic setups. One which is in India and most of the countries of the world, which we call the parliamentary democracies. And the other is the presidential democracies, like the kind of system which exists in the United States. So the basic one-line difference is that in a parliamentary democracy, the representatives are elected constituency-wise. Constituency-wise means in Lok Sabha there is a demarcated area which is called a Lok Sabha constituency, and in the case of Vidhan Sabha there is again a demarcated area which is called one assembly constituency, and from there the election are taking place. So in the system that we have in India, there are people who are elected for Lok Sabha who are sitting in the parliament in New Delhi, in the national capital, and then in each state there are legislative assemblies, as we call them, Vidhan Sabha. So the assembly elections take place, and the elected representatives sit in the assembly of that particular state in the capital of the state. This is a completely different system as compared to the system in the US, wherein the president is being elected at the national level, and all the voters from entire country, they vote for that candidate, for those candidates who have been fielded by different political parties in the election. So in the case of US, there is a 2-party system, unlike India wherein there is a multi-party system. So in US, the 2 candidates are in the frame. One is from the Democratic Party and another is from the Republican Party, and that is how the presidential election is taking place. So one easy thing regarding conduct of election is there, and there are not 10, 20, 30, 40, 50 candidates in the fray, the kind of thing that we find in India. So only 2 candidates are there. Obviously, pan-country election is difficult, but that's a system which
US has. In India, we do not have that kind of system. Now, so the kind of system that we have in India, it's a parliamentary democracy because parliamentary parties are fielding the candidates, whether in Lok Sabha or Rajya Sabha or even in the local bodies, municipal elections. If I can tell you about the municipal elections since that reference has come, there was a proposal by Mehta Committee. If any one of you have gone through about the grassroots democracy in India, we call it as a grassroots democracy, which means the elected bodies in villages, in small towns and big towns like Gram Panchayat, then Zilla Parishad, then Nagar Palika, then Nagar Mahapalika or the Nagar Nigam, as in Delhi we have the Nagar Nigam. So these are different bodies. So in the Mehta Committee, which is considered a very important committee, and I think media teachers must know about that. This all happened during the growth of the this local self-government, as we call it. That political parties should not be involved at the grassroots level. Which means, if we try to understand it in easy terms, like if this MCT election is taking place, so no political party should be in the picture. Anybody can contest the election and can win the election and can provide the governance. And what is the merit or the demerit of this system, which we can see what happened in the recent MCD elections, the kind of fighting which happened when these elected representatives sat together. But in the local self-government also there is a house wherein elected representatives are sitting and their sessions are taking place the way it happens in assemblies. So a lot of fighting, physical fighting happened during the elections of mayor and deputy mayor. And then obviously, since it's a political party-based election, so what happens? The Lieutenant Governor is also having certain interests which he is trying to put in during the mayor elections. Aam Aadmi Party has power in Delhi state. They also have their own states, and a lot of ugly scenes were created. And the real issues are sidelined. Now, in the case of assembly elections and Lok Sabha elections, the system that we have, that elections are normally to be announced every 5 years. When elections started, general elections as we used to call them, started in India, then elections were to take place every 5 years, and it was common in the country wherein Lok Sabha election is taking place. Along with that, assembly elections are taking place in all the states. This continued for till I believe 4 times 52, 57, 62. Then it got disrupted around 67 or so. Since that time, it's a disrupted system wherein any assembly election is taking place anytime. Even Lok Sabha elections have not been taking place every 5 years. I mean, that period is not being followed. Like if I can give you example about Lok Sabha, there are 3 elections took place in 3 years. 96 the Lok Sabha election took place, then in 98 and then 99. सो पूरा जो साइकिल है 5 साल का वो डिस्टर्ब हो गया लोकसभा के केस में. उसके बाद से वो साइकिल इज बीइंग मेंटेन 1990 के बाद 2004, 2009, 2014, 2023. लेकिन वो वहाँ भी डिस्टर्ब हुआ लोकसभा में भी. और इवन उससे पहले भी 1988 में इलेक्शंस हुए, 1 साल पहले हुए अपने टर्म से. 84 के बाद 89 में होने थे, 88 में हो गए. उसके बाद 2 साल तक 2 गवर्नमेंट आई जो अनस्टेबल थी. 90 में फिर 91 में फिर इलेक्शंस हुए लोकसभा के. तो ये हुआ है, हालांकि 20-25 साल से स्टेबल है, लेकिन विधानसभाओं का जो इलेक्शंस हैं वो हर समय होते रहते हैं. फॉर द रीज़न कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कभी टर्म जल्दी ख़त्म हो गया, कभी प्रेसिडेंट रूल लग गया. तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन हैपनिंग. तो हर साल 3 या 4 असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं, जैसे अभी कर्नाटक में हो रहे हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में होंगे, छत्तीसगढ़ में होंगे, फिर उसके बाद राजस्थान में होंगे. तो प्रोसेस चलता रहता है. अब
Now coming to the this political party related issues. Now in India there are political parties which are contesting elections, but independents are also allowed to contest elections, which is unlike the presidential system. अमेरिका में कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं होता है, राइट? हमारे यहाँ कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो सकता है, राइट? नाउ अगेन देयर आर गुड पॉइंट्स, देयर आर नॉट सो गुड पॉइंट्स इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम. Since independents are allowed to contest elections, so what happens if there are 7 or 8 parties in the fray which have fielded candidates? There can be 20 independents. तो इस तरह के इलेक्शंस भी होते हैं, 40-50 कैंडिडेट मामूली बात होती है, राइट? सो इस तरह के सिस्टम में इसका नुकसान क्या है? इसका मतलब ऑन द फेस ऑफ इट लगता है बहुत अच्छा है, हर एक को ये फ्रीडम है इलेक्शन में खड़ा होने की, लेकिन इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि 40 कैंडिडेट अगर फ्रे में हैं और 100 वोटर्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, दिस जस्ट एन एग्जाम्पल, और 100 में 60 लोगों ने वोट दिया, 40 तो पहले बाहर हो गए. अब जिन 60 लोगों ने वोट दिया, उन्होंने ए पॉलिटिकल पार्टी को 5 लोगों ने वोट दिया, बी को 6 लोगों ने वोट दिया, किसी को 7 ने दिया, किसी को 3 ने दिया. बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे जिनको 2 वोट मिला होगा, 1 वोट मिला होगा, आउट ऑफ 100 दिस आई एम गिविंग एग्जांपल. कुछ को 0 वोट मिला होगा. तो इस पूरे प्रोसेस में उन 40 लोगों में जिसको 12 या 13 वोट मिल गया वो जीत जाएगा. तो 100 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12 वोट से जीतने वाला एमएलए बन जाता है. सो दिस इज अ फ्लॉ इन द सिस्टम. उसको मेजॉरिटी तो मिली नहीं. तो ये इलेक्शन का एक सीरियस इशू है, और पॉलिटिकल पार्टी से बाहर भी कैंडिडेट के खड़े होने का ये नुकसान है. सो विच मीन्स कि इंडिपेंडेंट को के या तो अगर रोक लगाई जाए इलेक्शन लड़ने पे, या उसमें और ज़्यादा राइडर्स लगाए जाए, और कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाए कि इतना इजी नहीं हो किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को खड़ा होने. ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ. दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टीज, हम सर ये राइडर्स की बात हम इंडिपेंडेंट के केस में क्यों कर रहे हैं? व्हाई नॉट राइडर्स फॉर पीपल हु आर स्टैंडिंग अप इन पॉलिटिकल पार्टीज? क्योंकि हम सबको पता है करप्शन तो ज़्यादा वहाँ पे है. जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं वो फिर भी सीधे और सही लोग होते हैं. मैं उसी पे आ रहा हूँ. पॉलिटिकल पार्टीज को हम कैसे समझें, क्या रूल्स हैं और उनको हमें क्या करने की जरूरत है? इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा नंबर होने में इट्स टू डिफिकल्ट टू हैंडल द इलेक्शन, और जो रियल मैंडेट है वो नहीं आ पाता. तो वी कैन क्रिएट ए सिस्टम, जैसे जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम एज पर लॉ है उसके हिसाब से इट इज़ ईजी टू सेट अप ए पॉलिटिकल पार्टी, राइट? आपने एक बॉडी बनाई, उसको रजिस्टर कराया, और उसके बाद आपको जाके उसका पार्टी की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी करके इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. लेकिन तुमने जो सवाल पूछा उसके जवाब में बहुत इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ. तो रजिस्ट्रेशन करा दे, सपोज मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, आई एम फ्री टू डू दिस, कोई ज़्यादा उसके हैसल्स नहीं. मैंने इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर भी करा दिया, तो या तो मेरी पॉलिटिकल पार्टी कभी इलेक्शन लड़ेगी ही नहीं, बनी हुई है, रजिस्टर्ड भी है, लड़ती नहीं. या अगर मैंने तय किया कि मैं दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो मैंने कहीं भी किसी को खड़ा कर दिया. कर्नाटक में किसी को, अपने दोस्त को कहा यार नॉमिनेशन फाइल कर दो मेरे पार्टी के नाम से, मैं तुम्हें समझ 10 जगह मेरे पर्चे थे, खड़ा कर दिया मैंने. तो मेरा एग्जिस्टेंस भी बना हुआ है. लेकिन मैंने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मेरा इरादा इलेक्शन लड़ने का नहीं था. क्या हो सकता है इरादा? इतना सिंपल वो करना, डिस्ट्रीब्यूट. क्या डिस्ट्रीब्यूट करना? दूसरे के जो वोट वोट्स है खराब ना उसके करना. वोट काटना. खड़े ही नहीं हो रहे तो वोट अच्छा करना. नहीं पता, अगर खड़े ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग का खेल है. मुझे पैसा कमाना है गलत तरीके से, सबसे आसान तरीका है पॉलिटिकल पार्टी बनाना. Sir, can this be recorded? Recorded means? For the record, this thing ki political parties they make also with an intention to. हाँ, ये ऑन रिकॉर्ड है. केसेस हैं, केसेस मिलेंगे तुम्हें इस पे. अब मैं अभी स्टैटिस्टिक्स याद करके नहीं बैठा हूँ, बट देयर इंडिया में hundreds of political parties used to be there. So few years back this problem was raised.
इस गवर्नमेंट के आने के बाद, विच इज़ अ गुड थिंग, जो एक अच्छा काम किया, दिस गवर्नमेंट नेल्ड दोज पॉलिटिकल पार्टीज, और एक जांच कराई गई कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, कब से हैं, कितने इलेक्शंस उन्होंने लड़े हैं। तो उसका जो नतीजा था वो ऑन रिकॉर्ड है, यही पता लगा कि ये तो पार्टीज कुछ करती ही नहीं है। कहीं भी एक उनको जाओ तो उनका दफ्तर में ताला लगा मिलेगा, जो एड्रेस उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। तो वो क्या करते हैं और क्यों करती थी पॉलिटिकल, अब तो फिर भी कुछ ठीक किया है। पहले क्या था, पॉलिटिकल डोनेशंस पर कोई कंट्रोल नहीं था, अभी भी दूसरे तरह से है। तो कहीं से भी डोनेशन आया, मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, मेरे पास डोनेशंस आ गए, तो मैं कहीं से डोनेशन ले सकता हूँ, बाहर से भी डोनेशन ले सकता हूँ और अपना पैसा बना सकता हूँ, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई स्क्रूटिनी नहीं थी कभी, अभी भी बहुत वीक है स्क्रूटिनी का सिस्टम। तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या होता है, इन अ पार्टी डेमोक्रेसी, उसको लेके कोई लॉ अभी तक हमारे देश में नहीं है ही नहीं। आरटीआई की स्क्रूटनी में ये सब नहीं आता होगा? नहीं, एक तो होगा सिस्टम इन प्लेस। सिस्टम इन प्लेस में 10 चीजें हैं, दो छोड़ दी, मैं आरटीआई से पूछ लूंगा, कुछ भी नहीं है, क्या क्या पूछूंगा? मैंने पैसा डोनेट किया, अगर हाँ। वो मुझे डाउट है कि ये पॉलिटिकल पार्टी उस पैसे नहीं, को तुम खा नहीं रही है। डाउट, तुम जैसे लोग, हम जैसे लोग कभी डोनेट नहीं करते पॉलिटिकल पार्टी को पैसा। कि किसी ने भी अच्छा नहीं, हाँ, कोई ये नहीं भी है। करता। मनी लॉन्ड्रिंग तो फिर बड़े वो सब- खेल वो अलग खेल है। ये भी है। कॉमन आदमी, इतने लोग बैठे हैं, किसने कभी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट, कोई नहीं करता। वो सब अलग तरह के लोग करते हैं, अलग मोटिव से करते हैं, और उनके गोल्स अलग होते हैं, सारा वो अलग अचीव करते हैं, वो खेल ही अलग है। तो ये करप्शन का पूरे तरीके हैं हमारे सिस्टम में कि कैसे आप इस काम को कर सकते हैं। तो खैर उसके बाद काफ़ी जांच हुई, बहुत सारी पार्टीज़ को, ये तुम्हें मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, एंड इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, अबाउट फ्यू इयर्स बैक, 4-5 years बैक परहैप्स, इलेक्शन कमीशन ने डी रिकॉग्नाइज किया है कि ये कुछ नहीं करते और इतना इनके पास पैसा आता है उसका हिसाब नहीं, डी रिकॉग्नाइज किया इलेक्शन कमीशन ने। बट स्टिल देयर आर मे बी लॉट ऑफ सच पार्टीज इवन टुडे। तो एक तो हमारा वो पूरा जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, या हम कहें रेगुलेटरी भी छोड़ दो इसको, रेगुलेटरी तो बड़ी चीज हो गई, जो बेसिकली प्रोसीजरल चीजें हैं, हाउ टू सेट अप ए पॉलिटिकल पार्टी, हाउ टू रन ए पॉलिटिकल पार्टी, वहीं पे प्रॉब्लम्स है। ठीक है। दूसरी बात, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है उसमें कुछ कुछ चीजें जरूरी है, ज्यादातर तो है नहीं, जो है उनका पालन नहीं होता। क्या है कि जब रिकॉग्नाइज करेगा इलेक्शन कमीशन, देन इलेक्शन कमीशन आस्क ए पॉलिटिकल पार्टी टू सबमिट इट कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब कितने मेंबर होंगे, कितने ऑफिस बेरर होंगे, कब इलेक्शन होगा, क्या सब चीजें। तो जो वो सबमिट करते हैं वो या तो ठीक से सबमिट नहीं करते, चीजें पालन नहीं करते, और इलेक्शन कमीशन कभी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता कि इन्होंने जो सबमिट किया उसके हिसाब से कर रहे नहीं कर रहे। एक चीज है जरूर कि रेगुलर, आई बिलीव एवरी 2 years द इलेक्शन हैज टू टेक प्लेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये मैंडेटरी, पार्टी का इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। तो क्या करती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हर 2 साल बाद, भाई इतने लोग मेरी पार्टी में, मैंने बुलाया, मैंने कहा कि मैं अध्यक्ष हो गया, तुम भी हो गए, और हर 2 साल में सबमिट कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन को डेटा मिल जाता है कि भाई इलेक्शन हुआ, इतने लोगों ने भाग लिया, ये प्रेसिडेंट बन गया, ये सेक्रेटरी बन गया। होता कुछ नहीं, या होता भी है तो लॉ में इसमें फ्लॉ क्या है, कोई भी पार्टी का प्रेसिडेंट कितनी बार बन सकता है ये तो भाई नहीं कि लिखा नहीं है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा रहेंगे हर बार वही इलेक्ट होंगे, जब वो चले जाएंगे तो उसके बाद हर बार उद्धव ठाकरे ही इलेक्ट होंगे। लॉ के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ के हिसाब से हर 2 साल पे इलेक्शन भी हो रहा है। इलेक्शन का सारा जो रिजल्ट है वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में जमा भी कर रही है, लेकिन इनर पार्टी डेमोक्रेसी तो है नहीं, क्योंकि दूसरा आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता, जीत ही नहीं सकता। अभी रिसेंट टाइम में सिर्फ सबसे अच्छा एग्जाम्पल इनर पार्टी डेमोक्रेसी का इंटरनल इलेक्शंस को लेके कांग्रेस का है।
जिन्होंने प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कराया, 2 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया और पैन इंडिया वोटिंग हुई। तो पॉलिटिकल पार्टी के कमरे में नहीं होती, हर पार्टी की स्टेट यूनिट भी होती है जो नेशनल पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस का है। तो एंटायर कंट्री में जो भी स्टेट्स हैं जहाँ जो कांग्रेस की यूनिट्स हैं, सारे मेंबर्स ने वोट किया। तो हजारों लोगों ने वोट किया जो पार्टी के मेंबर्स थे, तब जाके प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ। ये आइडियली सारी पार्टीज को हर 2 साल में करना चाहिए। कांग्रेस ने भी अभी किया है, 20 साल से नहीं किया था। 20 साल से तो जो गांधी फैमिली का होगा वही बनेगा प्रेसिडेंट। कागज पे हो जाएगा इलेक्शन, मीटिंग होगी और ये होगा कि ये इलेक्ट हो गए यूनानिमसली। तो यूनानिमसली कोई इलेक्ट हो गया, लेकिन हो यूनानिमसली इलेक्ट कौन होगा? राहुल गांधी होंगे, दूसरा होगा नहीं। पहली बार अब उन्होंने कम से कम 25-30 साल में, जब तक मेरी मेमोरी में है, इस तरह से इलेक्शन अब करवाया। सर अगर खड़गे के अगेंस्ट राहुल गांधी होते, अगर इलेक्शन में खड़गे के अगेंस्ट राहुल गांधी होते तो फिर वही मतलब पार्टी मेंबर्स उन्हें सेलेक्ट इलेक्ट नहीं, कम से कम इलेक्शन तो हुआ। हाँ। वो तो ठीक है, जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा वही जीतेगा। हाँ। लेकिन इलेक्शन तो हुआ और वो फ्रेम में खड़ा तो हुआ। जो तुम्हारा केरल वाला एमपी है शशि थरूर, इलेक्शन में खड़ा तो हुआ, कॉन्टेस्ट तो किया उसने। कौन सी पार्टी में तुमने देखा कभी कि कॉन्टेस्ट हो रहा है? बीजेपी यूज्ड टू बी वेरी गुड पार्टी की 2 साल में इलेक्शन कराते हैं और प्रेसिडेंट बदल देते हैं। ये किसी जमाने में बीजेपी के बारे में था कि हर 2 साल में नया प्रेसिडेंट आ जाता है। कभी कभी किसी को दूसरा टर्म मिला है उनके अपने पार्टी के संविधान में, बीजेपी के, कि किसी को 2 टर्म से ज्यादा नहीं मिलेगा प्रेसिडेंट, तो इसलिए उनके प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब तो, पहले तो जेन्युइनली बदलते थे, अब क्या है, अब तो वही प्रेसिडेंट होगा जो ऊपर से डिसाइड होगा कौन सा इलेक्शन हो रहा है। सर बट 2 के बाद नहीं मिलेगा, नहीं। जैसे नड्डा 2 बार बन गए तो अब तीसरी बार नहीं मिलेगा। वो उनके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहले तो इट यूज्ड टू बी ए वेरी क्लीन पार्टी ना, तो उस तरह वो पालन करते थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, रिकॉग्निशन को लेके प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, उनके कंपोजिशन को लेके, उनके स्ट्रक्चर को लेके और उनके इन सारी चीजों को लेके प्रॉब्लम्स, राइट। अब इसमें एक प्रॉब्लम है पार्टी की फंडिंग की, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग, पैसा कहाँ से? इस पर समय समय पे अलग अलग चीजें रही हैं। पहले ये था कि कोई भी फंड दे सकता था पार्टी, तो लोग पार्टी को चंदा दे देते थे। धीरे धीरे उसको और रिफाइन किया गया सिस्टम को। फिर उस सिस्टम में ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंड आता है वो दे आर नॉट बाउंड टू मेक इट ट्रांसपेरेंट। कोई कानून नहीं, सबके लिए कानून है, हम जितना पैसा कमाते हैं उस पर टैक्स देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई कानून नहीं, कितना भी पैसा कमा सकते हैं, कितना भी पैसा डोनेशन में ले सकते हैं। आरटीआई में भी नहीं पता कर सकते। नहीं। लेकिन ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जो फंड आता है वो एवरी फाइनेंशियल ईयर द पॉलिटिकल पार्टी हैज टू सबमिट द डेटा टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। They will just send it to them, but we can't ask नहीं, it क्या to ask देंगे? for the data. ये नहीं देंगे पैसा कहाँ से आया, अच्छा, कितना आया? कहाँ कितना आया, कितना, वो बेसिक जो कंपाइलेशन देंगे, बट उसके डिटेल्स नहीं देते। तो जो गलत पैसा अगर आ रहा है उसका सोर्स नहीं ट्रेस हो सकता। इसीलिए जो एडीआर है वो जो भी स्टडीज करते हैं वो इलेक्शन कमीशन से मांग लेते हैं पैसा। अगर वो डेटा अगर तुम्हें चाहिए तुम भी आरटीआई लगाओ, इलेक्शन कमीशन बता देगा किस पॉलिटिकल पार्टी का कितना, अखबार में छपता भी है। हाँ, ADR तो आपको पता है कि इस पार्टी पर 2000 करोड़ आया, इसके पास 1500 करोड़ आया। आया कहाँ से, सोर्स नहीं पता। ठीक है, तो अब इन्होंने सारी पार्टीज ने मिलके जो फंडिंग है उस गलत फंडिंग को लेजिटिमाइज करने के लिए पार्लियामेंट में कानून पास कर दिया, कानून ही बन गया। तो अब जो बॉन्ड्स को, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लॉ बना, जो ओरिजिनली जो एक्ट था मनमोहन सिंह के समय में पास हुआ और 99% लोग सपोर्ट में थे विद फ्यू एक्सेप्शंस। लेफ्ट पार्टीज ने परहैप्स विरोध किया था, बाकी सब ने पास कर दिया।
सर क्या था उसमें? इलेक्टोरल बॉन्ड का अभी आज के अखबार में ही खबर है कर्नाटक के इलेक्शन को लेके, क्योंकि हमने कर्नाटक के बैकड्रॉप में ये रखा है टॉपिक। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है वो बता देता हूँ, किसी को पता है? इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम ये है कि सपोज मैं 1 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ किसी पार्टी को, ठीक है, तो मैं बैंक जाऊंगा, 1 करोड़ का बॉन्ड खरीद लूंगा। डिजिग्नेटेड बैंक्स हैं जो बेच सकती हैं बॉन्ड। किसी जमाने में पोस्टल ऑर्डर हुआ करता था, पता है कुछ? जब आप फॉर्म भरते थे, अब ऑनलाइन हो गया ना, तो बनता ही था। हाँ, तो जाते थे पोस्ट ऑफिस में, एक एग्जामिनेशन मुझे देना है, 100 रुपए का पोस्ट फीस है, 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर खरीद के लाया पोस्ट ऑफिस से, उसकी काउंटर फॉइल मैंने अपने पास रखी और जो था वो एप्लीकेशन के साथ लगा के भेज दिया। जिस डिपार्टमेंट में भेजा वो पोस्ट ऑफिस में उन्होंने वो जमा किया, वहां से 100 रुपये ले लिए। So, वो तो draft- कैश कहीं नहीं भेजा, क्योंकि पहले कोई ऑनलाइन तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं, तो ऐसे ही होता था। मैंने 100 रुपए का खरीदा, जिसको दिया उसने 100 रुपए कैश करा लिया अपने पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। तो बस बॉन्ड इसी तरह से है। मैं गया, मैंने 1 करोड़ रुपए बैंक को दिया, बैंक ने मुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आपने Written document. रिटन डॉक्यूमेंट वो दे दिया। जैसे तो gold एक जो bond कागज से- दिया वो 1 करोड़ रुपए का है। मैं गया और मैंने कांग्रेस के दफ्तर में वो जमा कर दिया 1 करोड़, वो बॉन्ड उनके ऑफिस में। बैंक से हाँ, वो उनका जो ऑफिस का आदमी होगा वो बैंक भेजेगा, वहां से एनकैश करा लेगा 1 करोड़ रुपए। जैसे तो जो gold bond- ट्रेल है पैसे का वो खत्म कर दिया कानूनी तरीके से, तो ट्रेल ही खत्म हो गया। पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि मैंने दिया, ऑब्वियसली मैं तो बता के ही तो दूंगा ना, तभी तो मैं 10 करोड़ के फायदे लूंगा बाद में। तो मैं तो बता के ही दे रहा हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, तो मैंने बता दिया कि मैं 1 करोड़ का बताऊँ, वहां रिकॉर्ड में नाम नहीं है मेरा, दे दिया मैंने। But transaction- जिन लोगों को पता होना चाहिए उनको पता है, तो जैसे ही इलेक्शन में वो जीत के आएंगे तो फिर मेरा ध्यान रखेंगे। तो ये है सारा खेल, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं आया और कानूनी बाध्यता है ही नहीं रिकॉर्ड रखने की। वो सिस्टम ही बनाया है कि यहाँ ट्रेल ना हो। तो अब उसमें क्या होता है कि जिसकी सरकार है उसी को मिलता है पैसा, जो पावर में होगा उसी को देंगे। अब मान लो कर्नाटक में या सेंटर में किसी की सरकार है, तो मुझे कर्नाटक में कोई ठेका लेना है, तो मैं चाहूंगा कि इन्हीं की सरकार आ जाए वहां पे, तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, बता दूंगा मैंने 1 करोड़ दिया है। जब उनकी सरकार आ जाएगी उस पार्टी की, फिर मैं आऊंगा, भैया मुझे ठेका दो 10 करोड़ होगा। तो इसको लेजिटिमाइज कर दिया है एक गलत तरीके का, और सारी पार्टियां शामिल हैं इस खेल में। इसको पार्टीज ने इसको PIL होकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, शायद 1 से ज्यादा PIL, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहा है कई सालों से। सर, पर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली पहले वाले से रिलेटेड था टॉपिक से। वो ये था कि आपने बोला कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ रूल्स या राइडर्स होने चाहिए, तो वो क्या राइडर्स हो सकते हैं? सिंपल है। जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक राइडर है, वो बता देता हूँ आपको, वहाँ से क्लू मिल जाएगा। सपोज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो रहा है, मैं खड़ा होना चाहता हूँ उसमें, मुझे 50 MPs के साइन करा के देना पड़ेगा नॉमिनेशन फाइल के साथ, लगाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ही फिर तो कोई भी खड़ा हो जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के, मजाक हो जाएगा। MPs वोट देते हैं ना प्रेसिडेंट का चुनाव में, तो 50 MP मुझे साइन करके देंगे कागज, वो नॉमिनेशन पेपर के साथ लगेगा, तब वो डिक्लेरेशन में नाम तो समथिंग कैन बी देयर। मतलब फ्रीडम हो खड़ा होने की, लेकिन कुछ तो आपको प्रोसीजरल चीजें होंगी। नहीं पता लगा कि अभी तो चलो 40-50 की समस्या है, कल को 500 लोग खड़े हो जाएंगे, यू कांट स्टॉप एनीबॉडी एज पर द लॉ, कोई भी खड़ा हो सकता है। तो उसको कहीं से तो हमें थोड़ा चेक एंड बैलेंसेस तो रखने ही पड़ेंगे ना इसमें तो सिस्टम। अगर MLAs एंडोर्स करेंगे, इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट नहीं रहा ना फिर तो नहीं, कुछ और भी, ये तो मैंने एक एग्जांपल एग्जाम्पल दिया, और भी तरीका हो सकता है। सपोज मैं MLA का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो 10 कारपोरेट जो हैं, जो पार्षद हैं, वो मेरे उस पर साइन करते हैं, मेरी रिकमेंड करें मेरा नाम। मुझे कोई भी नहीं जानता, मैं सिर्फ बहुत 90% जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, मैं उनके राइट को छीनना नहीं चाह रहा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो टाइम पास खड़े होते हैं। क्या होता है, मैंने केवल अपनी सिक्योरिटी दी, जो भी 1000-2000 दे दिया, नॉमिनेशन फाइल कर दिया, अब मेरा नाम बैलेट पेपर में छापा,
एलिवेटेड फील कर रहा हूँ कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, मेरा नाम छपा हुआ है, सब पड़ोसियों को बताया मुझे वोट दो, देखो मेरा नाम लिस्ट में। तरह तरह के होता है, मतलब एक्चुअल होता है। तो ये टाइम पास वाला काम ना हो, मतलब सीरियस बिजनेस बनाओ ना इसको, इलेक्शन को। ये टाइम पास होता है। बहुत लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तुम पढ़ो प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में, एक वो हुआ करता था, तुम लोग किसी को नहीं पता होगा। राइडर भी तो लगा सकते हैं, अगर फी का नहीं, फी का राइडर है, वो बता देता हूँ। फी का अगर क्या है बताओ। सर कितने पैसे हैं? हाँ, मिनिमम मैक्सिमम कितना? नहीं, उसका ये है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें जमा करना पड़ता है कैंडिडेट को। अगर उसको एक सर्टेन, आई थिंक 6% ना, उससे कम वोट मिलते हैं तो फॉरफीट हो जाता है, रिफंड नहीं होगा। उसको बढ़ा दो, ये मैं वो बढ़ाया जा सकता है। उसको बढ़ा दो। कैंडिडेट अपने आप कम हो जाएंगे, पैसा नहीं अच्छा, होगा। बढ़ाने का तरीका क्या होगा, उसका भी आधार होना चाहिए। आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन एक्सपेंस पे सीलिंग क्या है, ये अलग अलग होती है, अगर नहीं पता हो। लोकसभा में इलेक्शन एक्सपेंसेस की सीलिंग अलग है, विधानसभा में सीलिंग अलग है, लोकसभा में भी अलग अलग वो है, स्लैब्स हैं। छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीलिंग अलग है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में एग्जैक्ट अमाउंट एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, लेकिन वो रेंज है उसका। कहीं पे 50 लाख होगी, कहीं पे 60 लाख होगी, 75 लाख होगी, लाइक दिस। इसी तरह से लोग विधानसभा में भी सीलिंग है, तो उसका तय कर लो कि जहां जितनी सीलिंग है उसका 10% आपको देना पड़ेगा। और 50 लाख की सीलिंग है, 5 लाख रुपए दे दो सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जो खड़ा होगा उसे ये खतरा तो होगा कि 6% से कम वोट मिले, मेरा 5 लाख रुपए चला जाएगा। फ्री फॉर ऑल नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरी सारी आबादी खड़ी हो जाएगी चुनाव में, ठीक है। और चूंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के खिलाफ मेरा एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पार्टी जीतती है वही सरकार बनाती है। अगर किसी राज्य में 400 लोग हैं विधानसभा में, और सपोज 100 एक पार्टी के जीत गए, 150 एक पार्टी के जीत गए, 50 एक पार्टी के जीत गए, 100 इंडिपेंडेंट जीत गए, सरकार कौन बनाएगा? जो इनस्टेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट से होती है। एक जो मेजॉरिटी पार्टी, कोई पार्टी मेजॉरिटी से 5 सीटें कम है, ठीक है, वो 5 इंडिपेंडेंट को ले लेता है, और वो पांचों कहते हैं हम दे देंगे सपोर्ट, हमें मंत्री बनाओ, 5 के 5 मंत्री बन जाते हैं। इट्स मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसलिए अदरवाइज तो ठीक है, खड़ा होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज पे आता हूँ, मेजर तो वही है। इंडिपेंडेंट की प्रॉब्लम है डेफिनेटली, लेकिन लार्जर प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग। अभी आज जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है वो है कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद 2018 की तुलना में 2018 में कर्नाटक में इलेक्शन हुआ था, अब 2023 में इलेक्शन हो रहा है। तो 2018 में के इलेक्शन के समय जितने इलेक्टोरल बॉन्ड बिके थे, उसका 6 टाइम्स इलेक्टोरल बॉन्ड 2023 में बिके कर्नाटक में सिर्फ। तो जब कहीं किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो धड़ाधड़ इलेक्टोरल बॉन्ड बिकने लगते हैं, क्योंकि उस समय इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ये अचानक 6 टाइम्स हो गया, तो ये कहां से आया, किसका पैसा, ये नहीं पता देश में किसी को भी। तो आपने पॉलिटिकल करप्शन को लेजिटिमाइज कर दिया। पूरे सिस्टम में करप्शन यहीं से आता है, क्योंकि जो पैसा देगा वो बिना रिटर्न के कोई पैसा नहीं देगा। तो आप कोई सरकार ही नहीं कह सकते कि हमारी सरकार में करप्शन नहीं है। आपने तो लिया है ना कैपिटलिस्ट से पैसा, तो जब आप जीतेंगे तो उनको वापस नहीं करेंगे। जो अभी कश्मीर के एलजी का भी एग्जाम्पल आया केस, उन्होंने पैसा लिया, ये बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है। कश्मीर के, मतलब ये हम एमपी एमएलए नहीं है, एलजी है, लेकिन फिर भी उसने जो अभी एलजी है मनोज सिन्हा, ये सारा रिकॉर्ड पे सबको पता है, जो लोग भी पढ़ते हैं उनको सबको पता होगा। तो जो कितने लोगों को पता है वैसे ये केस, एलजी साहब ने गाजीपुर से के वो गाजीपुर से जो लोकसभा का चुनाव लड़ा 2019 का, तो सही गलत मुझे नहीं पता, ये मैं तथ्य बता रहा हूँ।
उन्होंने किसी व्यक्ति से, कोई मिस्टर राय हैं, उनसे पैसा उधार लिया इलेक्शन के बाद। अब उधार लिया नहीं है, रिकॉर्ड पे पैसा उधार लिया। कितना लिया? 20 लाख, 50 लाख, सब कोई ऐसे कोई अमाउंट लिया। उसका चुनाव हार गए, ठीक है। लेकिन वो चूंकि बीजेपी की टॉप लीडरशिप के प्रिय हैं, तो कहा कोई बात नहीं, हार गए तो उससे पहले 2018 में यूपी के चीफ मिनिस्टर के लिए उनका नाम चला था, लेकिन वो पीछे रह गए रेस में, योगी आदित्यनाथ बन गए। फिर वो 2019 में लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी बीजेपी की लीडरशिप ने उनको जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया। अब जिस आदमी ने उनको 2019 के लोकसभा चुनाव में 20 लाख रुपए दिया था, वो आया कि भैया मेरे 20 लाख रुपए, तो जो भी हुआ हो, उन्होंने कहा ठीक है बताओ। तो उसने जो भी कुछ मांगा उस दिलवा दिया। मांगा क्या? उसने एनजीओ बनाया, एक रेस कोर्स रोड पे उसका ऑफिस बनाया, रजिस्ट्रेशन कराया, और उसके बाद उसने ये प्रोजेक्ट करना शुरू किया कि मैं तो पीएम का आदमी हूँ, वहीं रहता हूँ रेस कोर्स रोड पे। उसके बाद से उसने अपना काम किया। क्या कर सकते हैं आप, समझ लीजिए पीएम से प्रॉक्सिमिटी की बात, तो आप कुछ भी करेंगे, वो सारा किया। उसके बाद उसको जो डेयरी मिनिस्ट्री है, उन्होंने कुछ डोनेशन दिया गायों की सेवा के लिए। उसके बाद किसी और मिनिस्ट्री ने कुछ पैसा दिया, क्योंकि फिर तो आप ऊपर चले गए ना। केवल 20 लाख रुपए दिया उन्होंने मनोज सिन्हा को उधार। अब वो उधार था नहीं था, या 20 दिया था, कितना रिकॉर्ड पे 20 लाख, ठीक है। उसके बाद से फिर वो अलग अलग सरकारी फंक्शंस में चीफ गेस्ट बुलाए जाने लगे, सारा हुआ। अब भी पकड़ा गया। ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की प्रॉब्लम हम बताते हैं कि आपको इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के तो होगा नहीं, और पैसा होता नहीं लोगों के पास। तो जो पैसा देता है वो इलेक्शन के बाद अपना हिसाब मांगता है कि मैंने दिया था, उसका हिसाब दो। तो ये जो सारा असली प्रॉब्लम है, जो फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है। सारी पार्टीज के पास, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के पास फंडिंग आती है, रूलिंग पार्टी के पास उससे 10-20 टाइम्स ज्यादा आती है। ये सारा डेटा है, एडीआर का डेटा, एडीआर की वेबसाइट खोलो मिल जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग का सवाल है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन जो रिकॉग्निशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज को, वो एज ए नेशनल पार्टी और एज ए स्टेट पार्टी। इसका क्या मतलब है रिकॉग्निशन का? बताओ, तुमने पढ़ा? सर रिकॉग्निशन मतलब उनको एक अपना सिंबल मिलेगा जो थ्रू आउट द कंट्री वो उनके लिए रिजर्व हो जाएगा। ये पार्टीज, नेशनल पार्टीज के लिए होता है। सर रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया, पहले ये पार्टी है, अब आपको इलेक्शन सिंबल नहीं मिलेगा, आप पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई भी सिंबल इलेक्शन कमीशन आपको अलॉट कर देगा। उसके बाद जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो ये देखेगा इलेक्शन कमीशन कि आपकी पार्टी को कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला ओवरऑल। सपोज जैसे आम आदमी पार्टी का है, तो यूपी, दिल्ली में उसको कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला, फिर गुजरात में कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला, फिर अभी वो पंजाब में लड़े, कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला। जब एक जो भी उसके रूल्स हैं वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव हैं, विच आई कांट टेल यू इंस्टेंटली। तो जब आपको आई थिंक 4 स्टेट या समथिंग है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रेजेंस 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में है, वो उन स्टेट्स में इलेक्शन 5 है, 6 है, वो देख लेगा। वो एग्जैक्ट नंबर आई डोंट रिमेंबर, वो तैयारी के लिए मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो वो डेटा एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज एनी पॉलिटिकल पार्टी if it is contesting elections in a certain number of states with a certain percentage of vote, then it can be given the status of a national political party. Like very recently, I think about 15-20 days back, Aam Aadmi Party has been elevated from a state party to a national party. सर एनसीपी हटा दी गई है, नेशनल पार्टी थी उसको हटा दिया गया। तो ये होता रहता है, कौन सी स्टेट है, कौन सी नेशनल है, ये डिपेंड करता है वो पॉलिटिकल पार्टी कंटिन्यूअसली कौन से इलेक्शन लड़ रही है। असेंबली के भी, लोकसभा के भी, उसमें जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है।
लोकसभा में के इलेक्शन में आपने कॉन्टेस्ट किया कि नहीं किया, किया तो कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिला, असेंबली में किया नहीं कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिला, कितनी स्टेट्स में आपने असेंबली का इलेक्शन लड़ा, ये सारा क्राइटेरिया देखा जाता है। उसके बाद यू आर ग्रांटेड आइदर द स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड वाइस वर्सा। जैसे अभी बताया कि जो स्टेट पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया, एनसीपी जो नेशनल पार्टी थी उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या? सबसे मेजर इम्प्लीकेशन है इलेक्शन सिंबल। अगर आपकी नेशनल पार्टी है तो आपको एक इलेक्शन सिंबल अलॉट करेगा इलेक्शन कमीशन, और आप पूरे देश में कोई भी चुनाव लड़ेंगे उसी सिंबल से लड़ेंगे। अगर आपके पास आपका स्टेटस स्टेट पार्टी का तो आपको जो सिंबल अलॉट होगा वो स्टेट में ही काम करेगा, दूसरे स्टेट में नहीं काम करेगा, उसी स्टेट में काम करेगा जहां पर अब स्टेट पार्टी है। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे कि समाजवादी पार्टी स्टेट पार्टी है तो उसका इलेक्शन सिंबल साइकिल है। तेलुगु देशम पार्टी आंध्रा में है, उसका सिंबल भी साइकिल है। नेशनल लेवल पे रिजर्व नहीं होगा। सेम सिंबल कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन डिफरेंट स्टेट्स। एक चीज और है जो मैंने उसमें लिखा भी, मैनिफेस्टो। नहीं, एक चीज और है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी का जो मैंने इशू उठाया उससे रिलेटेड बात है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं होने की वजह से न सिर्फ इलेक्शन पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस पे असर पड़ता है, बट जो पार्टी अपने कैंडिडेट्स फील्ड करती है किसी भी इलेक्शन, उससे भी उसका संबंध है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स कैसे फील्ड करती है, इसका कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं। मैं किसी पार्टी के प्रेसिडेंट को जानता हूँ, मिल जाएगा मुझे सिंबल, मुझे कैंडिडेट बना देगा, और जिससे प्रेसिडेंट खुश नहीं है उसको नहीं देगा। कर्नाटक के इलेक्शन में ही बीजेपी का चीफ मिनिस्टर रहा है जगदीश शेट्टर, तो बीजेपी हाईकमांड नाराज हो गया, उसको चुनाव में टिकट ही नहीं दिया। सिस्टम नहीं जिससे कि पार्टी लीडरशिप खुश होगी उसको टिकट दे देगी, जिससे खुश नहीं है उसको टिकट नहीं देगी। कोई सिस्टम नहीं, और जो जिस आधार पर देती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं। ये समझना है कि कैंडिडेट का कैसे चुनाव होना चाहिए और कितना ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक होना चाहिए, इसको समझना है तो आप यूएस के इलेक्शन को देखिए। सिस्टम की बात कर रहा हूँ समझने के लिए। वहाँ प्रीलिम्स होते हैं, कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मैंने कहा कल तुम खड़े हो गए, तुम ही खड़े हो गए। देयर हैज टू बी सिस्टम। तो उसमें पार्टी का जो कैडर है उनका भी चॉइस है, फॉर्मल चॉइस जो ली जाती है, और इसके अलावा वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग हैं, जो इलेक्टोरेट्स हैं, उनकी भी राय ली जाती है। और लंबा एक प्रोसेस के बाद ये तय होता है कि ये आदमी खड़ा होगा। चलो यहाँ तो कोई भी खड़ा हो जाता है जो जिसकी प्रॉक्सिमिटी है टॉप लीडरशिप से, या जिसने पैसा दिया, जैसे मायावती करती थी। ये भी एक सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किस प्रोसीजर के साथ अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेगी जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, उसका सिस्टम नहीं। दूसरी बात, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी करती। मैनिफेस्टो का मतलब हुआ जब पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन फ्रेम में जाती है तो वो लोगों को बताती है कि अगर वो जीत के आई तो ये काम करेगी। ठीक है, तो होता क्या है, इलेक्शन का जब प्रोसेस शुरू हो जाता है उसके बाद लोग अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं। कर्नाटक का एग्जाम्पल ले लो। कर्नाटक के इलेक्शन में क्या हुआ, किसने मैनिफेस्टो कब जारी किया? सर कल हुआ है बीजेपी का, कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। वोटिंग से 10 तारीख से शुरू हो रहा है, एक हफ्ते पहले। एक हफ्ते पहले आइडियली वो पहले हो जाना चाहिए। 6 महीने पहले करो ना, लोगों को बताओ कि हम क्या करेंगे। नहीं, लोगों को बताओ ना कि हम क्या करेंगे, नहीं बताते। कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया अपना। नहीं, पहले कर दिया। कल तो जो आया था उसमें तो उन्होंने लिखा था कि नॉट डन इट येट। आई बिलीव पहले कर दिया।
चलो कांग्रेस बीजेपी की बात हम यहाँ उतनी नहीं जा रहे किसने किया किसने नहीं किया, बट द पॉइंट इज कि हमेशा इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू होने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो जारी करती हैं, ये सब करते हैं। तो ये आई वॉश है, पहले से आप नहीं, लोगों को इलेक्टोरेट्स जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द पीपल अबाउट इट्स पॉलिसीज, अबाउट इट्स एजेंडा, क्या किया है और क्या करना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये अपने इलेक्टोरेट्स को, अपने वोटर्स को नहीं बताती। क्या बताती है? इसने मुझको गाली दे दी, इसने मुझे बुरा भला कह दिया कि देखो मैंने तो मंदिर बनवा दिया और मैंने तो हमने ये और स्टेट्स में क्या किया है, उस स्टेट में क्या तुमने किया और क्या करोगे ये बताओ, वो नहीं बताते। तो ये कंपलसरी होना चाहिए। टाइमली नहीं करते हैं, उसमें क्या होता है जैसे पिछले टाइम में वेट करते रहते हैं कि इसका आ जाए उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करेंगे, वो ऐड करके जारी करें। पहले आम आदमी पार्टी का आया, फिर कांग्रेस का आया, उसके बाद बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। तो ये वेट करते हैं कि इन्होंने कौन सा पॉइंट छोड़ा है तो अगला पॉइंट हम इसमें कौन सा ऐड करके दे दें, तो हम जो भी पब्लिक है उसको अपनी तरफ इंटरेस्ट में देन इसको हम कर सकते हैं, इसका सजेशन भी दे सकता हूँ मैं। इसको इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि हर पार्टी से मैनिफेस्टो मांग ले 6 महीने पहले। सर तो ये लास्ट मिनट तक ट्वीक कर सकते हैं मैनिफेस्टो। नहीं ये अच्छा, ये अलग होता है, ये अलग। और सर कोई गाइडलाइंस भी होती है काय की? नहीं है, नहीं है ना? नहीं है, हाँ, नहीं है, यही कह रहा हूँ, होनी नहीं चाहिए है। मतलब, हाँ। बहुत आसानी से हो सकती है, हाँ। आसान तरीका, बहुत आसान तरीका। इलेक्शन कमीशन मैंडेटरी कर दे कि भैया आप इलेक्शन से 3 महीने पहले मई में, सपोज इलेक्शन कर्नाटक में जनवरी में कह दे अपना मैनिफेस्टो सबमिट करो। इलेक्शन कमीशन के बाद मैनिफेस्टो आ गया, जो भी पार्टीज कॉन्टेस्ट कर रही है इलेक्शन कमीशन सारे अखबारों में छपवा दे। सिंपल। सिस्टम के फ्लॉज हैं ना, हम करना नहीं चाह रहे सिस्टम को ठीक है, एक ही दिक्कत ये system में आसान आप- तरीके हैं, मुश्किल भी नहीं। system इलेक्शन ये भी तो कमीशन हो ही नहीं सकती है। बनाना चाहती है इसलिए। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराना नहीं है। हाँ वही तो। इलेक्शन कमीशन का काम, जो कभी किसी ने नहीं बताया वो बता देता हूँ, इलेक्शन कमीशन का काम लोगों को पॉलिटिकली, इलेक्टोरली एजुकेट करने का है, अवेयरनेस जिससे लोग अपने, ये पहला केस जो आया था 19 का, उसमें लिखा गया, मैं उसको दूंगा, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया है, मीडिया का काम क्या है ये बताने के लिए लिखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मीडिया का काम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मीडिया ही लोगों को पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन देता है और मीडिया की जिम्मेदारी है लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करे, जिससे लोग अपने राइट का, वोट का सही तरह से इस्तेमाल करें, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव चुने, जिससे उनको अच्छी गवर्नेंस मिले। तो उसमें मीडिया के कॉन्टेक्स्ट, मीडिया का रोल डिफाइन करते हुए बात कही है। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे लोग भी चुने जाएं, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। अब उसको डायरेक्ट तो इंटरवीन कर नहीं सकता, वो ये इंश्योर करे कि लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करे। इससे सर इलेक्शन परसेंटेज भी बढ़ेगा। हाँ, हमें पता तो होगा। अब एक और उदाहरण दे देता हूँ, जब भी इलेक्शन होता है हर कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करता है, अपने प्रॉपर्टी के डिटेल्स देता है, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड देता है। ये पहले नहीं था, माइंडेड। हाँ, ये सारा एडीआर ने फाइट किया है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए, तब ये एडिशंस हुए हैं कि कैंडिडेट को ये सारा देना पड़ेगा अपना, पहले नहीं देते थे। ये उसके बाद कोई इतनी आगे। सारी इंफॉर्मेशन, अच्छा, अब क्या है, दे तो दिया, आधी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसमें भी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। नहीं अब नहीं दे सकते, अब तो मुश्किल है, अगर जेल से बर्खास्त- अब मुश्किल है, अब मुश्किल है। तो अब जब जानकारी दे दी एफिडेविट में, ठीक है, तो पत्रकार आरटीआई से निकाल के छाप देते हैं, एडीआर भी आरटीआई से लेके निकाल लेता है, लेकिन ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने कैंडिडेट खड़े हैं, किसने क्या एफिडेविट में दाखिल किया है, वो इट शुड बी मेड पब्लिक, जैसे भी करे इलेक्शन कमीशन। लेकिन इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि ये जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, इसके खिलाफ इतने केसेस हैं, ये हुआ है, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, कंपैरेटिव देना चाहिए। एक कैंडिडेट 2019 में खड़ा हुआ तो उसके पास थी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी,
अगला 24 के इलेक्शन में खड़ा हुआ तो उसने कहा मेरे पास है 500 करोड़ की प्रॉपर्टी। लोगों को जानने का तो हक है कि 10 करोड़ से 500 करोड़ पहुंच गया, सिंपल है। और वो सबमिट किया है उसने इलेक्शन कमीशन में, बता दो लोगों को। तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दिया, जो मन में आए करो, जितना चाहे फंड इकट्ठा करो, कोई नहीं पूछेगा। मैनिफेस्टो दो मत दो, कभी भी दो, कोई नहीं पूछेगा। कैंडिडेट्स के बारे में बताओ या नहीं बताओ, कोई नहीं पूछेगा। एक चीज इसमें ये भी होनी चाहिए कि डूज एंड डोंट्स की गाइडलाइंस वो होती होगी, मुझे नहीं मालूम बनाते हैं, लेकिन कि आप इलेक्शन के टाइम तक पार्टी मेंबर की तरह जा रहे थे, एज ए पीएम की तरह जा रहे हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये क्यों नहीं होता? ये भी तो होना चाहिए। एंड क्या आपको बोलना है आप और क्या नहीं बोलना? नहीं, एथिकल गाइडलाइंस तो है, लेकिन एथिकल गाइडलाइंस है, फॉलो नहीं होती। ये भी वो इलेक्शन कमीशन सेलेक्टिवली करता है उसको, किसके खिलाफ शिकायत का कॉग्निजेंस लेना है, किसके खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं लेना है, ये इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है। तो ऑब्वियसली वो किसका लेगा किसका नहीं लेगा ये सबको पता है। तो इसलिए वहाँ एथिक्स कोई फॉलो नहीं होती, एथिकल गाइडलाइंस नहीं फॉलो। शिकायतें तो बहुत आती हैं, बहुत आती हैं, नहीं कोई फॉलो नहीं करती। Thank you so much, sir, for such an insightful session. I hope we all learned from this session a lot related to the electoral processes across India and various provisions related to campaigns, manifestos and recognition of political parties. In the next session, we will again come up with the next topic of contemporary issues. Till then, thank you so much everyone for participating.